Hello friends, this is the fifth video and this is part 1 of fifth video. So I'll be making two parts of fifth video, right? So this is question solving session. So these are the question numbers according to video, like I have already mentioned them in the description of the respective videos. So set A 2019 CSAT. For 2020 I have solved the questions side by side. If you have any doubt you can still message me for previous year questions or whatever, right? So from video 1 these are the concepts, these are the questions related to that concept. From video 2 these are the questions. These are not exclusive concept, like there might be concept of prime number and odd number usage, but there might also be concept of you can say making basic equations, right? So basic equations I'll be making in the sixth video. I'll just teach you that, right? So today I'll be just solving these two, right, in this first part. So there are around 7 questions. Next video we'll be doing 5 questions each, right? So let's not waste time, let's start. So question number 58, what I've done is from the official site I have taken this paper, set A. It is given in set A only, official site. So this is question number 58, right? Let's start. Consider two statements S1 and S2 followed by a question. P and Q both are prime numbers. P plus Q is an odd integer. Question is P and Q an odd integer, right? So what are prime numbers? Numbers that are divisible by the number itself and 1. So 2, 3, 5, 7, not 9, 11, because 9 is divisible by 3, right? So I should point out 9 and not 9, right? What are odd? That are not divisible by 2. Remember 1 is not prime, right? 1 is only divisible by 1. It is not divisible by any other number. It has to be divisible by the number itself and 1. So two numbers have to be. So we say that, right? Okay. Now the question is of P into Q. So it can yes, it can be or no. So we just have to answer yes or no. That's it. So two statements. So first is P comma Q, P and Q both, and second is sum is odd integer, right? Okay. Now first just let's take statement 2, right? Then we'll go to statement 1 because statement 2 is very simple. See, if you are adding two even numbers, E1 plus E1 plus E1 will always be even, right? Take any two even numbers, right? Odd plus odd will also be even. Try it anytime, any number you take. 3 plus 5, 8, right? And even plus odd will be odd. Okay, simple. Okay, now we are talking about P into Q, and it is saying that P plus Q is an odd integer. It is already telling us it is an odd integer. So if the sum is odd integer, it is odd, so it is only possible that one of them is even and one is odd, right? We don't need to know exactly what it has to be, right? And if a number is even, so it will not be a prime number because it will always be divisible by 2 apart from the number 2 itself, right? 2 is a prime number. Apart from 2, any other number that is divisible by 2 is not a prime number. Say 4, right? Okay, so even plus odd is odd, right? So now it is asking P into Q, is it odd or is it an odd integer, yes or no? So since we have already discovered that since P plus Q is already given as odd, and it can only be possible that when one is even and other is odd, so the multiplication of P and Q will never be an odd integer. So answer will be no. Why? One number will be even into odd, whatever be the number. So this number is always divisible by 2, right? And so whenever you will multiply this number, you'll always get an even number. Let's take an example. Even number, let's consider any even number, say 8, right? Odd number, let's consider 11. So 11 into 8 is 88. 88 is even, it is divisible by 2 because this is divisible by 2, right? And since they are multiplying, so this will always be divisible by 2, no? So that is why we'll only for this question we only require statement 2 to answer a question. Statement 1 anyway is futile, right? It won't help us. So this was the question. This type of questions have been repeated again this year. A lot have been repeated. So we'll be doing that.
Now these type of questions in exam, this particular question, maybe I would have left this question, because in exam there is a stress, there is a rush. So there are multiple simple questions that you can attempt, but anyways, so this is this question. So for this question, S2 alone is sufficient to answer the question, right? So 58, it will be B. Okay, next question. Question number 60. Interesting question, very interesting question. So this was question 58. Now we'll be doing question 60. Very interesting question again, right? So question says number 136 is added to 5b7. 136 is added to 5b7, addition. So we get a number 7a3. 7a3. That is exactly divisible by 3. The only possible value of b is, now 7a3 is divisible by 3. Now divisibility rule of 3 says if the sum of digits are divisible by 3, this number will be divisible by 3, right? So 7 plus a plus 3 has to be divisible by 3. That is 10 plus 3, 10 plus a has to be divisible by 3. Now what numbers after 10 are divisible by 3? 12 is divisible by 3, so a will be 2. What else? 15, so a will be 5, right? What else? 18, 8. What else? Now you can't say a is 11 because a is a center digit, it has to be single digit. So these are the possible values of a: 2, 5 or 8. Now we have to tell the value of b, right? Now see the option. First thing, 2, 5, 8 are mentioned. Second thing, it is asking for value of b, not for the value of a. Now let's come here, right? Now basic addition, ऐसे जो बचपन में करते थे, एक एक पहाड़ा ऊपर चढ़ा के, 6 + 7 कितना होता है? 13. एक ऊपर गया, ठीक है. 3 + 1 कितना हुआ? 4. 4 + b लिख देता हूँ. 4 + b कितना हुआ? आपको लगेगा a. हाँ, शायद a होता, लेकिन हो सकता है इसका एक पहाड़ा ऊपर चढ़ा हो, वो चीज़ कंफर्म कर लेते हैं ना. यहाँ पे क्या नंबर है? 7. 5 + 1 कितना होता है? 6. तो डेफिनेटली एक पहाड़ा ऊपर चढ़ा है, समझ लो. 7 है ना, 5 + 1 तो 6 होता है, तो एक डेफिनेटली ऊपर चढ़ा है. और ये एक ऊपर चढ़ा है तो ये बेसिकली ये पहाड़ा यहाँ से आया होगा, ये वाले नंबर से. और तो ए क्या होगा? अब मान लो कि आपका जैसे ए मान लो अगर 13 होता, मतलब b + 4 13 हुआ अगर, तो 3 नीचे रह जाएगा ना, 1 ऊपर चढ़ जाएगा. तो ए क्या है तुम्हारा? 3 होगा ना. ए तो बेसिकली 1 ऊपर चढ़ गया. तो तुम अब क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया कि एक पहाड़ा ऊपर चढ़ा है, तो हम कर देंगे 4 + b = a + 10. मतलब सीधा 10, यही तो पहाड़ा ऊपर चढ़ता है. सिंपल हो गया. तो अब a की वैल्यू डाल के देखो, 2 डाल के देखो. तो अगर आप 2 डालोगे तो 4 + b = 2 + 10 12. 4 सब्ट्रैक्ट करो तो b आ जाएगा आपका 8. b 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सिंगल डिजिट होगी ना. चलो b 8 हो सकता है, बाकी भी तो चेक करनी है. 5 डाल के देखो. 4 + b = 5 + 10 15. b कितना आ गया? 11. b 11 हो सकता है? नहीं, क्योंकि सिंगल डिजिट होनी है ना, तो 11 नहीं हो सकता. सिमिलरली जब आप 8 डालोगे, इसी में 8 डालोगे यहाँ पे, a की जगह 8, 8 + 10 18, 18 - 4 14, तो b आ जाएगा 14. b 14 हो सकता है? नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट होगा. तो b की इकलौती वैल्यू जो हो सकती है वो है 8. तो इसका आंसर हो जाएगा 8. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन यार, जो सेकंड क्लास में पहाड़े करवाते थे एडिशन उंगली पकड़ के, वही तो. चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73. ओके. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हाउ मेनी ट्रिपलेट्स x, y, z satisfy the equation x + y + z = 6 where x, y, z are natural numbers. यार देखो, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है अगर तुम्हें ये नहीं पता कि नेचुरल नंबर क्या होता है. समझ गए? तो वीडियो में समझा है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं. 1 2 3, मतलब इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं. 1 2 3 इन्फिनिटी तक. 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है. 0 से अगर कोई शुरू होता है तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं, नॉट नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर पूछे उसने, ठीक है. चलो x + y + z = 6. अब बस बैठ के ना वहाँ पे पेपर में तुम्हें तुक्के मारने, ठीक है. चलो x, अब मान लो कैसे चेक कैसे कर सकते हैं? 2 + 2 + 2 कर सकते हैं, ठीक है, हो गया. अच्छा, और क्या कर सकते हैं? 1 + 1 + 4 भी कर सकते हैं, है ना. अब ट्रिपलेट्स पूछे उसने x, y, z के, ठीक है. तो क्योंकि उसने ट्रिपलेट्स पूछे हैं x, y, z के, तो तुम ऐसे देखो, ये 1 + 1 + 4 है, तुम इसको यूँ भी ले सकते हो 1 + 4 + 1, या फिर 1 + 1 + 4.
और किसी तरीके में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि ये दो नंबर सेम है ना, ठीक है। अब तो आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 तो यही होगा, ठीक है। अब और कोई नंबर जो 6 बनाता है, 1 + 2 + 3, है ना। अब इसको उल्टा पुल्टा करोगे ना तो ये 6 नंबर बन सकते हैं। यहाँ पे तो 1 और 1 सेम थे ना, अब इसमें देखो 1 2 3 है, एक बार 2 को बीच में ही रखो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 1। अब अगली बार 1 को बीच में ले आओ, 2 बार 1 बीच में आएगा, एक बार क्या हो जाएगा 3 1 2, और एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 3। अब एक बार 3 को बीच में ले आओ, 2 बार बेसिकली, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अलग अलग नंबर है सारे के सारे, और ट्रिपलेट्स है ना, तो x, y, z पूछ रहे हो तो x, y, z, समझ गए। तो ये कितने हो जाएंगे 6, 6 + 4 10। और कोई ऐसा नंबर है, अब तुम बोलो 006 या 600, वो नहीं है क्योंकि 0 होल नंबर में आ जाता है, नेचुरल हो जाता है। तो टोटल 10 केस बन सकते हैं, देखिए 10 है D 73 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 73, बेसिक क्वेश्चन है यार, ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 35 38 39। चलो भाई, ये वीडियो 2 से वो एज वेज वाले बेसिक क्वेश्चन, तो इक्वेशन ही बनानी होती है, इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन चलो ज़्यादा पढ़ा दिया था। 18 था क्या? हाँ 18 था, हियर सॉरी। तो इन 2002 मीनू की एज 1/3 थी मीरा की। 2010 में मीनू की एज आधी होगी मीरा की, तो मीनू की एज पूछने, बर्थ मतलब ईयर ऑफ बर्थ पूछे, तो मीनू की एज को है 2002, सब कुछ अब मैं 2002 के रेफरेंस में कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2002 में जो मीनू की एज होगी उसको मीनू मान लेते हैं। 2002 में ये लिख लेना पेपर में ऐसे ऊपर कि 2002 में कर रहे हैं हम, ये नहीं है हर साल बदलते रहोगे। तो 2002 में मीनू की एज मीनू मान लेते हैं, और मीरा की एज मीरा मान लेते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, जो मीनू की एज है दैट वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा, 1/3 ऑफ एज ऑफ मीरा। तो अगर मीरा की एज 30 हुई तो मीनू की कितनी हुई 1/3, जो कि हुई 10, ठीक है। तो मीनू की जो एज है वो मीरा की एज की 1/3 है, 1/3, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई, बेसिक इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहे हैं, अब 2010 में चले जाओ, मीनू की जो एज होगी वो आधी होगी मीरा की एज की, ठीक है। अब 2010, अब देखो 2010 में तुम सिर्फ मीनू लिख दोगे यहाँ पे इज इक्वल टू मीरा की कितनी, अब जो मीरा की एज है उसकी आधी बाय 2, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगी ना भाई। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि एज तो 2002 के हिसाब से सोच रहे हो, अब तुम पहुँच गए 2010 में, तो क्या करोगे भाई, 8 साल जोड़ो भी दोगे। अब मीनू की एज, अगर मीनू थी पहले, अब मीनू की एज क्या हो जाएगी, मीनू + 8, 2010 में पहुंच गए ना यार। मीरा की एज क्या हो जाएगी, मीरा + 8, समझे। यही तो बेसिक चीज़ें हैं। तो इतना किया, ठीक है। चले 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो। पहले इक्वेशन से क्या आ जाएगा, मीरा जो है, ये मैं 6th वीडियो में सॉल्व करना भी सीखूंगा वैसे फिर से। 3 × मीरू, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा, मतलब मैं सॉल्व कर दूँ, चलो सॉल्व करके दिखा देता हूँ वैसे। 2 मीनू + 16 इज इक्वल टू 3 × अब मीरू को मीरा की जगह में मीरू डाल दिया, × 3 है ना, मीरू + 8, क्यों, क्योंकि मीरू सॉल्व करना था ना। तो ये गया, मतलब सिर्फ मीरू बचेगा, ये साइड कट जाएगा, तो सॉल्व कर लेना यार। मीरू जो है आपका वो 8 साल की निकलेगी। अभी मीरू की एज 8 साल है, ये 8 साल कब है, 2002 में 8 साल की है। उन्होंने पूछा है, मीरू कह रहा था यार, सॉरी मीनू, हाँ। तो उन्होंने पूछा था कि मीनू पैदा कब हुई थी। अब मीनू की एज है 8 साल, मीनू की एज 8 साल कब है, मीनू की एज 8 साल है 2002 में, तो पैदा कब हुई होगी 1994 में। 1994 में 8 साल जोड़ोगे तो 2002 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1994, राइट। चलो क्वेश्चन 18, मुझे अपना पेज से खचखच सा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो 2 कर लेंगे, चलो कोई नहीं। चलो यार बदल लेते हैं पेज, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35, सिंपल। तो ऐसा है यार, ये क्वेश्चन सिंपल है, तुम्हें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, बेसिक एडिशन, डिवीजन, दैट्स इट, ठीक है। डरना नहीं है क्वेश्चनों से, डरोगे तो फिर तो खैर क्वेश्चन कितने मुश्किल है, आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कोई फंडा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं,
लोग एज देख के डर जाते हैं, ठीक है। देखो आप सीता गीता मतलब डेट देख के, सीता गीता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, सीता गीता, ठीक है। सीता गीता तैरने जाते हैं, दे गो फॉर अ स्विम आफ्टर गैप ऑफ एवरी 2 days एंड 3 days रिस्पेक्टिवली। तो सीता आज गई है तो कहती है 2 दिन बाद जाऊंगी मैं, ठंड लगती है मेरे को। गीता को 3 दिन बाद। तो इफ ऑन 1st January बोथ ऑफ देम वेंट फॉर अ स्विम टुगेदर, व्हेन विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट। तो यार देखो 1 तारीख को गई सीता, 1 तारीख को गई गीता, अब इसको चाहिए 2 दिन का गैप, सीता को लिख रखे क्वेश्चन में, मैं नहीं कह रहा। 2 दिन का गैप छोड़ दिया, 2 और 3 छोड़ देते हैं, तो अगली बार कब जाएगी, 4 को, 4 को, 5 और 6 को छोड़ देते हैं, 7 को, 8 और 9 को छोड़ देते हैं, बताओ बताओ भाई, 10 को, ठीक है। 11 और 12 को छोड़ देते हैं, 13 हो जाएंगी। 13 को गई, 14 15 को छोड़ देते हैं, 16 को, चलो इतना बहुत चली गई। गीता जी को देखो ये 3 दिन छोड़ दी, 1 को गई, 2 3 4 को नहीं जाएंगी, 5 को जाएंगी, 6 7 8 को नहीं जाएंगी, 9 को जाएंगी, 10 11 12 को नहीं जाएंगी, 13 को जाएंगी, 14 15 16 को नहीं जाएंगी, 17 को जाएंगी। चलो अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 1 जनवरी को 7 में गई थी, वो तो हमने देख लिया था। अगली बार कब इकट्ठी जाएंगी, कब जाएंगी वही इकट्ठी, कब जाएंगी वही इकट्ठी, 13 जनवरी, सिंपल है ना। चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 38 भी देख लेते हैं। ये रहा भाई, हो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ईना वॉज बोर्न 4 years आफ्टर ब्ला 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 ब्ला। देखो सीधी बात है, जब भी पहली बार क्वेश्चन आए ना, एज के क्वेश्चन आने, तो तुम्हें एक ईयर फिक्स कर लेना है, कुछ भी नहीं करना, या एज फिक्स कर लेनी है। यहाँ पे कौन कौन है, ईना, तो ईना की एज को हम लिख देते हैं ईना, ठीक है। अभी के लिए मदर की एज को लिख देते हैं मदर, फादर की एज को लिख देते हैं फादर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ईना वॉज बोर्न 4 years आफ्टर देयर पेरेंट्स मैरिज, हर मदर इज 3 years यंगर देन फादर। मदर जो है वो फादर से 3 साल छोटी है। अगर फादर अगर मान लो 40 साल के हैं या 50 साल के हैं, तो मदर -3 47 की होगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बन गया हमें। चलो 1 सेकंड रखते हैं इसे। अच्छा, और हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर एंड 24 years ओल्डर देन एना। तो एना से 24 साल बड़ी भी है, ठीक है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, मदर इज इक्वल टू एना की जो अभी एज है उसमें 24 ऐड कर दो, बिल्कुल ठीक बात। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, और जो एना है हु इज 13 years ओल्ड, तो अभी एना की एज कितनी हुई, 13 साल की हुई है ना। तो मदर की एज कितनी हुई, 13 + 24 कितनी होगी आपकी, 37, ठीक है। 37 आ गया ना भाई। अब जो फादर हैं इस इक्वेशन से, मदर जो है फादर से 3 साल छोटी है, तो फादर कितने साल के हुए, अगर मदर 37 की, तो फादर हुए 37 + 3, तो यहाँ चला जाएगा, तो 40 years के हो गए फादर। अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, अभी 40 years के। अब इन्होंने पूछा था एट व्हाट एज डिड ईनाज फादर गेट मैरिड। चलो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कब शादी हुई। देखो अब वो 40 साल के हैं और ईना खुद 13 साल की है, तो -13 करोगे तो कितना आया, 27 साल। तो ईना के फादर जब 27 साल के थे तब ईना पैदा हुई थी, ठीक है, तब पैदा हुई थी। अब क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं ईना वॉज बोर्न 4 years आफ्टर मैरिज, मतलब उनकी शादी के 4 साल बाद पैदा हुई थी। अब जब ईना पैदा हुई तब उसके फादर 27 साल के थे, तो शादी कितने साल में कर ली होगी, 23 साल में की होगी ना, +4 = 27। तो क्वेश्चन देखें, 23 आंसर है आपका, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो जब भी ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं एक नंबर मान लेता हूँ, जनरली 100 मानता हूँ मैं, बहुत सिंपल रहता है डिस्काउंट निकालना, 100 या 1000, है ना। क्योंकि अगर 100 पे 20% डिस्काउंट है तो 20 रुपये कट गए। कुछ भी रैंडम नंबर दे दो, 100 पे 12% डिस्काउंट है तो 12 रुपये कट गए। तो ऐसे सिंपल बनाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, राकेश हैड मोबाइल टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट्स, राइट, हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी। चलो कंपनी का नाम ले लेते हैं यार, 39 है ना, नोकिया। तो राकेश के पास पैसे थे, 8 नोकिया के फ़ोन खरीद सकता था। रिटेलर ने कहा कि मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ नोकिया पे, और अब तू उतने ही पैसों में 10 खरीद सकते हैं, तो कितना % डिस्काउंट है, सिंपल है सर। सो हम मान के चलते हैं कि नोकिया की एक फ़ोन की कॉस्ट 100 रुपये है। तो पहले अर्लियर, इंग्लिश में बोल लेता हूँ थोड़ा, तो अर्लियर राकेश कुड बाय मोबाइल वर्थ 800 रुपीज़, क्योंकि ही कुड परचेज 8 सेट्स,
अर्लियर, है ना। अब उसने कितने खरीदे हैं? 10, ही परचेज 10, लेकिन मनी उसका बढ़ा थोड़ी है, द मनी अमाउंट इज सेम, ही जस्ट गॉट सम ब्यूटिफुल डिस्काउंट। सो वो डिस्काउंट कितना, लेट्स सी दैट। सो हैड ही नॉट गॉट डिस्काउंट, तो व्हाट वुड हैव बीन द कॉस्ट प्राइस? 100, one mobile costed 100 rupees, right? So what would have been the cost price for 10? It would have been 10 into 100, so it is 1000. It would have been 1000, but instead he paid 800 for these 10 mobiles, right? That is a concept, no? He had 800 rupees, 8 into 100, so he had initially planned, but he got 10 into 100,000, so this is the discount. So how much rupees discount did he pay? 200 rupees discount. So 1000 पे 200 सीधा 20%, right? But again, if you have to calculate the percentage discount, so you can count that, as a cost price minus selling price divide by into 100. cost price 100 है, 1000 है, selling price 800 है, divide by cost price 1000 था, whole into 100, ये परसेंटेज आ जाएगा, ये 200 है, तो 200 by 1000 into 100, काट तो यार पूरे को, ये 20 बचा, तो 20% डिस्काउंट रहेगा। तो बेसिकली आंसर में गया 20%, सिंपल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रिक यूज़ करता हूँ मैं, उसको परसेंटेज वाले क्वेश्चन में इस साल भी थे, देयर वाज सम ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन परसेंटेज, लाइक देयर वर 3 स्टेटमेंट्स। सो चूज अ नंबर, बेसिकली 100, एंड गो अकॉर्डिंग टू दैट। यू कुड हैव चोज डिफरेंट नंबर, अगेन सेम फॉर्मूला लगाते, सेम आपको 20% मिलता, राइट। सो क्वेश्चन ईजी हैं, बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपको नहीं पता, इफ यू डोंट नो व्हाट नेचुरल नंबर्स आर, व्हाट प्राइम नंबर्स आर, व्हाट ऑड नंबर्स आर, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, दैट कैन नॉट बी हेल्प्ड। सो फॉर दैट आई हैड मेड वीडियोस, राइट। बाकी क्वेश्चंस आर कि वही 5th 6th क्लास वाली कंसेप्ट्स हैं, बस आपको बैठ के वहाँ पे खेलना है नंबर्स के साथ, यू जस्ट हैव टू प्ले विद नंबर्स। So you have to practice for that, for getting into touch, for playing with numbers. You have to practice few questions, not much, even if you do 2018 questions yourself, it will be done. And next time in the second part, we'll be doing this 54, 68, 40, 58, 69. So basically 2019 में इन 4 वीडियो से आप ये देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मतलब जो कंसेप्ट है 12 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। 2020 में ये नंबर काफ़ी आया था, ये 12 है, 2020 में ये नंबर अराउंड 17-18 था, so that is around 30 marks for, है ना। So okay, that is for now. If you have any doubt, please message. Thank you.